Hello students, I welcome you all in the online classes of science, class 9th. This is your first chapter, matter in our surroundings, which we are going to start. The chapter is about that what is around us, what is this, what characteristics possesses it. So in this chapter we will discuss about matter, and in this video this is part 1 of your chapter number 1. We will discuss this chapter in two parts. This is part 2 and another part will be released in some days. And in this part we will discuss about the definition of matter, and second the classification of matter, and the definitions of the types of matter, the states of matter, and the third is diffusion. So let's start this. First, what is matter? Matter in our surroundings. Entire universe is made up of matter and energy. Air, water, steam, petrol, carbon dioxide, silver, gold, oxygen, wood, paper, etc. are all different kinds of matter. All these occupy space and have mass. तो इसकी definition क्या होगी? The definition of matter is those substances which occupy space and have mass. These are known as a matter. So this is the definition of matter, and the other is the classification of matter. The matter is classified into two things. The first is physical classification, second is chemical classification. मतलब मैटर को दो चीज़ों में क्लासीफाई किया जाता है. पहला इसका क्लासिफिकेशन होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. फिजिकल क्लासिफिकेशन में इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया जाता है. दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स. सो लेट्स मूव अहेड. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. अब इसमें आपको अपनी नोट्स में क्या क्या लिखना है, दैट इज़ सबसे पहले यू विल राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. फिर आपकी पहली हेडिंग होगी मैटर. थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद डिफिनेशन, जिसमें आप मैटर की डिफिनेशन लिखेंगे. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन होगा. उसके बाद हम मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स. Every matter is made up of tiny particles. The number of tiny particles in every matter is very, very large. One drop of water contains about 10 to the power 21 molecules. The tiny particles which make up the matter are also so small that they cannot be seen even by a powerful microscope. It is important to know the particles which make up the matter are either atoms or molecules. मतलब जो आपका मैटर है, कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है जो मास को ऑक्यूपाई करता है, जो जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो एटम्स और या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद ये हेडिंग आपको लिखनी है यहाँ तक, एटम्स और मॉलिक्यूल्स तक. उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स जितने हैं. फर्स्ट इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड एंड द थर्ड वन इज़ गैसेस. सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड क्या होता है? द सब्सटेंसेस, द मैटर, the substances which have definite shape and definite volume is known as solid. तो हेडिंग होगी स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें पहली हेडिंग सॉलिड, जिसमें डिफिनेशन लिखी जाएगी. द सब्सटेंसेस और द मैटर, यू कैन राइट एनीथिंग विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड. उसके बाद अब होगा इन सॉलिड्स intermolecular space is very small and intermolecular force is very strong. Then the question must rise in your mind,
that what is intermolecular space and what is intermolecular force. Then let's go and understand it. The intermolecular space is the space between two atoms, the space between two molecules of a matter. ये जो फिगर बना है ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है. इसमें जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिफिनिट स्पेस है. इट मीन्स एक निश्चित जगह बची है, निश्चित दूरी पर ये स्थित हैं. तो दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और इसमें सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच सेम होता है, सबका डेफिनिट होता है और इसका शेप. और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, जितना कम होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतना ज़्यादा लगेगा फोर्स. तो इसमें एटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के वो बहुत ही क्लोज प्लेस्ड है. इट मीन्स बहुत ही पास रखे हुए हैं, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगता है रैदर देन लिक्विड और गैस की अपेक्षा इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहता है. देन इन योर डिफिनेशन यू मस्ट मेंशन दिस एंड देन we will talk about liquid. That what is liquid? Indefinite shape and indefinite volume. आपकी definition होगी the substances or the matter, you can write anything, the matter which have indefinite shape and definite volume. And now why I am saying indefinite shape and definite volume? Indefinite shape क्या होता है लिक्विड का? जो लिक्विड का शेप डिपेंड करेगा आपके कंटेनर पर. अगर आप बॉटल में कोई लिक्विड लेंगे एज वाटर को अगर हम बॉटल में रखेंगे तो उसका शेप बॉटल के शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा. और अगर हम इसे बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के शेप के हिसाब से लिक्विड का शेप हो जाएगा. फ्लास्क में रखेंगे फ्लास्क के शेप के हिसाब से हो जाएगा. इट मीन्स इसका जो शेप है वो डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है. इट इज़ डिपेंड ऑन द कंटेनर. एंड वॉल्यूम हमेशा डिफिनिट रहेगा लिक्विड का. सो डिफिनेशन विल बी द मैटर विच हैव इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए लिक्विड. एंड इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड. इट मीन्स जो लिक्विड है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर वो थोड़ी दूरी पर हैं. मतलब जितना सॉलिड में पास थे मॉलिक्यूल्स उससे दूर होते हैं लिक्विड में. तो इसीलिए इसका शेप जो है वो डिफिनिट ना होकर इनडिफिनिट होता है और इसमें फोर्स जो है दूर है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा सॉलिड से. इसीलिए this is indefinite shape and definite value. So this is the definition of liquid. And let's go ahead to the definition of gases. What is gases? The matter which neither have a fixed shape nor a fixed volume. मतलब गैस वो है जिसका ना कोई फिक्स्ड शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है. इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द कंटेनर. गैस में ना उसका फिक्स शेप होता है, उसका शेप भी इंडेफिनिट है और वॉल्यूम भी इंडेफिनिट है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम लगता है. इसीलिए इसका इंडेफिनिट शेप होता है और इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है. So your definition will be the matter which have neither a fixed shape nor a fixed volume is known as a gas. And in gases intermolecular space is very large, so intermolecular force is very less. और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए. और इसके बाद हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा. तो अब इन तीनों की
प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड में डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। सॉलिड में हाई डेंसिटी होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी है, सॉलिड हैव नो टेंडेंसी टू फ्लो ऑन अ सरफेस, सॉलिड कोई भी कहीं बहता नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर यूजुअली इनकम्प्रेसिबल। डिफ्यूजन, सॉलिड्स हैव पार्टिकली नो टेंडेंसी टू डिफ्यूज इनटू वन अनदर, होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय बाद। अब इसमें जो वर्ड आ रहा है डिफ्यूज़न, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद आपकी हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, जिसमें ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद इसी तरह लिक्विड्स के हैं, जिसमें ये 5 पॉइंट्स को मेंशन करना है। पहला है शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन डिफिनिट शेप नहीं होता है। नो डिफिनिट शेप, यू कैन राइट इट आल्सो इनडिफिनिट शेप। डेंसिटी, लो डेंसिटी है। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो फ्लूरी ऑन अ सरफेस। कंप्रेसिबिलिटी, more compressible than solids. Diffusion, liquid has tendency to diffuse in one another. इसके बाद गैसेस की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। शेप एंड वॉल्यूम, indefinite shape, indefinite volume, density, very low density, fluidity, they can flow in all directions. Compressibility, gases possesses high compressibility. Diffusion, gases have great tendency to diffuse. सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न गैस। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद योर नेक्स्ट हेडिंग इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में डिफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ 2 or more substances ऑन दियर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। इट मीन्स जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना, दैट इज़ डिफ्यूज़न। अब इंटरमिक्स क्या हो रहा है इसमें, ये हम सॉलिड के फिगर या लिक्विड के फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें जो ये फिगर बना है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है, स्पेस है, क्लियरली दिख रहा है। अब इसके बीच में अगर हम सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूज़न करवा रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई दूसरा सॉलिड का मॉलिक्यूल आके घुस जाए तो दैट इज़ इंटरमिक्सिंग, सो यहाँ पे डिफ्यूज़न हो जाएगा। तो ना आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिक्विड में ही ऐसा सेम है, ज़्यादा सा जगह है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनके बीच में दूसरा किसी लिक्विड का आके इसमें उसका मॉलिक्यूल आ जाए, इंटरमिक्स हो जाए दोनों, दैट इज़ डिफ्यूज़न। ऐसे गैस में सेम, तो दैट इज़ डिफ्यूजन। डेफिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ 2 or more substances on their own is called diffusion. Diffusion occurs in solid, liquids and gases. Diffusion is fastest in gases and slowest in solid. सबसे तेज़ डिफ्यूज़न होता है गैसेस में, सबसे धीमा होता है सॉलिड्स में। और इसका ऑर्डर क्या है, गैसेस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, सबसे कम सॉलिड में डिफ्यूज़न का। और ये डिफ्यूज़न क्यों होता है ये भी लिखा है, ये भी आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है। इसके बाद डिफ्यूज़न इन गैसेस, सबसे पहले गैसेस की बात करेंगे क्योंकि सबसे बढ़िया डिफ्यूज़न होता है गैसों के बीच। द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन, देयरफॉर डिफ्यूज़न इन गैस इज़ वेरी फास्ट। द फ्रेगरेंस ऑफ फूड एक एग्जाम्पल है, सबसे लास्ट वाला जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम गैस ही होता है एक टाइप का, और उस गैस वाले परफ्यूम को हम उसकी जो ढक्कन है उसको ओपन करके एक रूम में रख देंगे, तो जो उस रूम में जो एयर है वो भी गैस है, और जो उस बॉटल में परफ्यूम भरा है दैट इज़ आल्सो गैस। तो जब हम उसकी ढक्कन खोल के रूम में रख देंगे, तो जो रूम में जो गैस है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स और इस परफ्यूम में जो गैस भरी है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर इंटरमिक्स होकर डिफ्यूज़न कर देंगे, जिससे पूरा रूम महक जाएगा। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़न इन गैसेस। एक और एग्जांपल है, वो भी आप पढ़िए, उसको अपने नोट्स में लिखना है।
उसके बाद डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स, और इसमें डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स में एग्जाम्पल है कि सिंस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स मूव स्लोअर देन दोज ऑफ गैसेस, liquid diffuses at a slower rate than gases. The rate of diffusion of liquids also depends on their density. Greater the density, smaller is the rate of diffusion. और ये जो activity 6 है, you had not to mention this. The rate of diffusion of liquids is faster than rate of diffusion in solids. That is your work, that you had to seek example of diffusion in liquids. And last is diffusion in solids. Diffusion in solids is very slow. It is because the position of particles in solids is fixed and they do not move from their positions. Secondly, it is due to small kinetic energy of particles in solids that diffusion in solids is very slow. It means जैसे solid में जो particles हैं बहुत ही पास है मॉलिक्यूल्स, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो इतने जल्दी मूव करने में उनको दिक्कत होती है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। और लिक्विड और गैस में क्या है, दूर है, फोर्स कम लग रहा है तो आसानी से मूव हो जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसीलिए सॉलिड में सबसे धीमा होता है डिफ्यूज़न। इसका एग्जांपल क्या है, आप ब्लैक बोर्ड पर कोई भी चीज़ चॉक से लिख दीजिए, एक दिन में लिखेंगे तुरंत मिट जाएगा, लिखने के 1-2 घंटे बाद तुरंत मिट जाएगा, और उसको लिखने के बाद 4-5 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, फिर जब आप उसे मिटाने जाएंगे तो उसमें आप जितनी एनर्जी पहले लगा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वो जो लिखा हुआ लेटर है वो उसी में चिपक जाता है। इट मीन्स वो उसी जो चाक के पार्टिकल हैं, आपके चाक के जो पार्टिकल हैं और जो ब्लैक बोर्ड का पार्टिकल था वो आपस में डिफ्यूज़न कर लिया, इंटरमिक्स हो गया, इसीलिए उसको मिटाने में टाइम लगता है, वो आसानी से नहीं मिटलता। सो दैट इज़ द एग्जांपल, इफ़ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ chalk and leave it unclean for a considerable period of time, it is found that it becomes difficult to clean the blackboard afterwards. It is because some of the particles of chalk get diffused into the surface of blackboards. So इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न, देन दीज आर द डिफ्यूज़न, डिफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न इन गैसेस, डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स, सॉलिड्स, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न। सबसे जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूज़न। फिजिकल स्टेट, सॉलिड्स डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स स्लोली, वेयर एज लिक्विड डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स फास्टर। इट मीन्स अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज़ कर रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज़ करेंगे तुरंत हो जाएगा, कॉमन सी बात है। टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट मीन्स जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा उतना जल्दी डिफ्यूज़न होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना बढ़िया बढ़ेगा। और जो लास्ट में इन एक्टिविटी 3 यू हैव नो मेंशन, यू हैड नॉट टू मेंशन इट। डेंसिटी, स्मॉलर डेंसिटी ग्रेटर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जितना कम डेंसिटी उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न, एंड वाइस वर्सा मीन्स जितना कम रेट ऑफ डिफ्यूज़न उतना ज़्यादा डेंसिटी। इसके बाद ये प्रॉपर फैक्टर्स हो गए जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न को अफेक्ट करेंगे, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर के कण हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसा कि आई हैव मेंशन्ड इट इन माई फिगर्स। लेट्स सी कि इन दोनों के बीच में जगह है, स्पेस है, वही चीज़ वहाँ लिखी है कि देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। एंड द थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव किया करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू मेंशन दिस इन योर नोट्स। एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर,
इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस की डिफिनेशंस में। इसको नो नीड टू राइट इट इन योर नोट्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उससे पार्टिकल मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को बांधे रखते हैं, रोके रखते हैं। Forces of attraction depend on the nature of particles of the matter. The particles of different matters differ in the magnitude of attractive forces. There is a strong force of attraction between the particles of solids such as iron, nails, copper, silver, gold, etc. It is the reason that solids have definite shape and definite volume. We have already studied about this in the definition of solid. As same as this is about liquid and here this is about gas. So you have only read about it carefully and do not mention it in your notes. And these topics you have to mention it in your notes and make the notes of this chapter. So this was the part first and we will release the part 2 in some time, and keep prepare this chapter. Thanks for watching.